Students, good morning. Yesterday we have discussed about some of the operation on the matrices. So based on that operations, we have some of the questions and examples. Like here, as in example 9 in the NCRT, I have sent you link already, day before yesterday and yesterday also. It is given if x plus y. Here x and y are the matrices representing the sum of two matrices, which is equal to 5, 2, 0, 9, and the difference of the two same matrices x and y, that is 3, 6, 0, minus 1. We have to find the value of the matrix x and matrix y. Now how can we find its value? First of all, we add these two matrices, that is x plus y and x minus y. Means we are adding 5, 2, 0, 9, 3, 6, 0, minus 1. Yesterday we have already read that only the comparable matrices can be added, that they must be of the same order. So order of the first matrix is 2 by 2. It's again 2 by 2, so they can be added. Here y get cancelled, it becomes 2x. Here we get 5 plus 3 8, 2 plus 6 8, 0 plus 0 is 0, 9 minus 1 is 8, because the corresponding elements can be added. So here we are adding the corresponding elements. Now multiplying both sides by half, or you can say dividing by the 2. Here it remains x here, it is 4, 4, 0 and 4. So the matrix x here we got is 4, 4, 0 and 4. In the same way, if we take the difference of these two above matrices, that is x plus y minus x minus y. Now x plus y is 5, 2, 0, 9. X minus y is 3, 6, 0, minus 1. So we are taking its difference. Again the corresponding elements can be subtracted. You can take 5 minus 3, 2. 2 minus 6 minus 4, 0 minus 0, 0, 9 plus 1 becomes 10, and here we got a 2y. Again dividing both sides by 2, or saying multiply both sides by the half. Here we get y, which is 1 minus 4 becomes minus 2, 0 and 5. So matrix y can be obtained in this way. That's the most important. Yesterday we have learned about the scalar multiplication, means multiplying any of the matrix with a scalar quantity or any of the constant quantity. Now here we are multiplying two of the matrices. How the two matrices can be multiplied? Now two matrices can be multiplied when it satisfies the condition that number of column of first matrix must be equal to number of row of second matrix. Here they are not need to be comparable, as in the case of the addition, and we are saying that the matrices are comparable, they are of the same order. Here the order is like that the number of column of first matrix must be equal to number of row of the second matrix. The first matrix A is 2, 4, 6, 8. It has the order 2 into 2. Now the matrix B 6, 4, 7, 0, 0, 1, the order is 2 into 3. If you see here, number of column of first matrix is 2. And number of row of first matrix is second matrix is 2. Since the number of column of first matrix and number of row of the second matrix are same, that is 2, so AB can be multiplied. It means that AB exists. Now how we have to multiply? I make some of the arrows here. If we see the first row consists of the element 2, 4, and here first column consists of 6, 0. So we multiplying the corresponding element of the first row with the element of the first column of the second matrix. Now अब पहले इसकी रो देखें, रो में क्या है 2, 4, इसका कॉलम क्या है 6, 0. So multiplying 2 with 6 and 4 with 0. Again first row with second column, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ 2 into 4 plus 4 into 0. यहाँ देखो आप लिखा मैंने 2 into 6 4 into 0, then 2 into 4 4 into 0. Then first row with the third column. मतलब हमें पहले रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना है. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ 2 into 7 plus 4 into 1. Then we come to the second row. Second row consists of 6 and 8. Now 6 multiply with 6, 8 multiply with 0, add them. Okay, then 6 multiply with 4, then 8 multiply with 0, 6 multiply with 7, 8 multiply with 1, means second row first column, second row second column, second row third column. मतलब पहले आपने रो उठानी है और सेकंड में आपने कॉलम्स लेने हैं और कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह मल्टीप्लाई करना है. तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई 12, 8, 18, 36, 24 एंड 15. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे ऑर्डर क्या आ रहा है, इट इज़ 2 by 3.
इसके ऑर्डर को हम अगर निकालना चाहें, जो मैट्रिक्स हमने ली थी, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम पहली मैट्रिक्स को देखते हैं, कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, पहले के कॉलम दूसरे को रो मैच कर रहे थे। ओके, यहाँ पे क्या बचा? रो कितनी है यहाँ? 2। यहाँ क्या बचा? 3 कॉलम्स आर हियर। मीन्स हमें ए बी मैट्रिक्स अगर मिलेगी, इसका ऑर्डर क्या आएगा? 2 × 3। ये 2 हमें कहाँ से मिला? पहले की रो से, और 3 कहाँ से मिला? दूसरे के कॉलम से। तो जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है उसमें जो रो और कॉलम दिख रहे हैं वो रो फर्स्ट मैट्रिक्स की है और कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत काम आएगा। फर्स्ट कंडीशन ये, फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज द कंडीशन फॉर द मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स हम लोगों के पास आ रही है उसमें जो हमें ऑर्डर दिख रहा है उसमें रो जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स से मैच करेगा और कॉलम जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मैच करेगा। ओके, अब देखें, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ ए। हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया था? वी हैव फाइंड हियर ए बी। अब देखेंगे बी आ सकता नहीं आ सकता। अगर हम बी × ए लेते हैं तो कंडीशन के हिसाब से इसके कॉलम ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ ए। नाउ कॉलम ऑफ बी इज हियर 3 and number of row of A is here 2. They are not equal. It means BA does not exist. तो अगर AB एग्जिस्ट करे इसका मतलब ये नहीं है कि BA भी एग्जिस्ट ही करेगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ इफ यू सी द एग्जांपल 18, इट्स अगेन एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इज द मैट्रिक्स A 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 of order 3 by 3. We have to find a cube -23a -40 I is equal to 0. It's not 0, null matrix. I identity matrix and this is the 0 matrix. प्रूफ करना है कि ये 0 मैट्रिक्स के बराबर आएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि आप इसके सारे एलिमेंट के स्क्वायर कर दें। ए स्क्वायर का मतलब होता है a × a, मैट्रिक्स ए लिखी, देन मैट्रिक्स ए, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे? वही फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम। यहाँ किया, देखिए मैंने यहाँ देखिए, ठीक है। फिर वापस आते हैं, अब क्या ले रहे हैं? सेकेंड रो 3 -2 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट रो, सॉरी सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो विद थर्ड कॉलम। अगेन वी हैव द थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो विद सेकेंड कॉलम, थर्ड रो विद थर्ड कॉलम। देखिए ये सब मल्टीप्लिकेशन शो किया हुआ मैंने। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? 19 4 8 1 12 8 14 6 15। ए स्क्वायर निकालने के बाद हमने अब ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब कैन बी फाइंड आउट बाय टेकिंग ए × ए स्क्वायर। ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में हमें दी हुई है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 और ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमने निकाली है, दिस वन। तो प्लेसिंग हियर अगेन क्या करना है हमने? मल्टीप्लाई। कैसे? सेम, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो विद थर्ड कॉलम, देन सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, सेकंड रो विद थर्ड कॉलम, थर्ड रो विद फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो विद सेकंड कॉलम, थर्ड रो विद थर्ड कॉलम। पहले रो उठानी है और फिर उसको कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। तो ये हमारे पास 63 46 69 69 -6 23 92 46 63 एलिमेंट्स आ गए। अब वैल्यू निकालनी है a क्यूब -23a -40 है। ए क्यूब ये रहा, ए क्वेश्चन में भी गिवन है, -23 × 23 मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ 40 × आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे 3 by 3 ऑर्डर के, भी 3 ऑर्डर के हो गए। तो -23 मल्टीप्लाई विद ऑल द एलिमेंट्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, -40 को मल्टीप्लाई किया, then we solve it 63 -23 + 40 because comparable matrices can be added। corresponding elements को आपस में हम ऐड कर रहे हैं तो क्या मेरे सारे एलिमेंट कैसे आ गए इसमें? 0। वी गेट द नल मैट्रिक्स। क्या मिला हमें यहाँ पे? नल मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2, 2x + 3y 2 3 4 0 3x + 2y 2 -2 -1 5। हमें मैट्रिक्स x और y निकालनी, जैसे मैंने एग्जाम्पल में किया था। तो सिंपली क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से, और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ से? x गेट कैंसिल, y मिल जाएगा यहाँ से। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई करेंगे हम x के साथ, 2 मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स के साथ, 3 मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड
2 मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड के साथ, सॉल्व करेंगे इसको और y की वैल्यू आएगी। इसी तरह से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अप्लाई क्या करोगे, 2 टाइम्स कीजिए सेकंड मैट्रिक्स का, 3 टाइम्स कीजिए फर्स्ट मैट्रिक्स का, देन सब्ट्रैक्टेड एंड देन सॉल्व इट। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी, इस सब के ऊपर जो बेस्ड है, एक तो एक्सरसाइज 3.1 आप कंप्लीट कीजिए, एक्सरसाइज 3.2 अप टू क्वेश्चन 10 तक आप कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।